Hi everyone, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In today's class, we'll discuss a very important concept, that is Heron's formula. So we'll try to finish this entire chapter into two lectures. This is first lecture and we'll see how to find the area of triangle using Heron's formula. Right? So let us see what is Heron's formula first, then we will solve the questions. Right? Till now you have used the basic formula to find the area of triangle. What is the basic formula? Suppose we have a triangle ABC. Suppose we have a triangle ABC. Measurement of base and the corresponding altitude is known. Suppose this is base B and its corresponding altitude is H. And the question is find the area of triangle. Then you can easily find the area of triangle by using basic formula half base into height. So half B into H, right? But what you will do, if the measurement of three sides are known and yes, altitude is not given, then how to find the area of triangle? So for that we use a very special formula that is called as Heron's formula, right? So what is Heron's formula? Suppose we have a triangle ABC and the measurement of three sides are A, B and C, right? Measurement of three sides are A, B, C, and you have to find the area of triangle. Then first of all you have to find the semi perimeter, and the semi perimeter is represented by S. What is perimeter? A plus B plus C. इसका अगर आप half कर दोगे so you'll get the semi perimeter. So this is the semi perimeter of triangle ABC. Now how to find the area of triangle? So area of triangle is equal to square root of S minus A, S minus B and S minus C. So this formula is called as Heron's formula, and when we use this formula, if the measurement of three sides of the triangle is known, right? So hopefully this formula is clear to everyone. If you want to know the proof of Heron's formula, then the link will be given in the description. You can watch the proof of Heron's formula, right? So काफ़ी easy proof होता है, आप समझ सकते हो, आप description में link given है उसको use करके, right? Yeah. So this is all about Heron's formula. First of all, you will find the semi perimeter, that is S. Then we use this formula to find the area of triangle, right? So let us do some questions to understand Heron's formula. So this is the first question, guys. You have a triangular path whose sides are 40, 32 and 24 meter. How will you calculate its area? So in this case, altitude is not given, measurement of three sides are given. So we will use Heron's formula. So let us assume this is A, this is B and this is C. So first of all find semi perimeter. Semi perimeter क्या होता है? A plus B plus C by 2. So it will be 40 plus 32 plus 24 by 2. जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा this is 40 and 32 plus 24 is 56. So 40 plus 56 by 2 is 96 by 2 and 96 by 2 is 48 meter. So this is semi perimeter. And what is Heron's formula? So area is equal to, simply write the Heron's formula and put the values. S into S minus A into S minus B into S minus C, right? जब आप इसमें values put कर दोगे so you will get right answer. What is S? S is 48. S minus M is 48 minus 40, that is 8. 48 minus 24 is 24 and 48 minus 32 is 16, right? Now solve this. तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो नंबर्स के फैक्टर्स में ब्रेक कर लूंगा. सो 48 को वी कैन राइट 24 इंटू 2, इस 8 को वी कैन राइट 4 इंटू 2, 24 को ऐसे ही लिखते हैं और 16 को 8 इंटू, सॉरी 16 इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है ना, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, अब सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं. तो हमारे पास 2 का एक पेयर है, 24 का एक पेयर है, 4 एंड 16 आर द परफेक्ट स्क्वायर. सो बेटा 24 का ग्रुप है तो ग्रुप से एक नंबर बाहर आ जाएगा. सो 24, 2 बाहर आ जाएगा. इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है. इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द राइट आंसर. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो.
So 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 24 into 16. That is 16 4s are 64. 16 2s are 32. 32 plus 6 is 38. So 384 meter square. So this is the area of this triangle which is ABC, which is given in the question. So काफी easy है. Okay. इसमें अगर कोई doubt है then you can please write in the chat box. All clear? So simply learn the formula. If you want to know the proof of this formula, so the link is given in the description. Okay, you can watch that. Now the next question. So let us see how to derive the formula for area of equilateral triangle by using Heron's formula. हम दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, एक तो बेसिक फार्मूला को यूज करके या फिर हमें हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि आपके बुक में हमें हीरोन्स फार्मूले से ड्राइव करने के लिए क्वेश्चन है. सो विल ड्राइव द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. सो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल होती है. सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ वी हैव अ ट्रायंगल ABC एंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर सेम, दैट इज A. सो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. सो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A plus A डिवाइड बाई 2, दैट इज 3A/2. गॉट इट? अब एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं. सो व्हाट इज एरिया? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इस केस में ABC सब कुछ सेम होगा, राइट. ABC किसके इक्वल? A के इक्वल. तो और S आपने फाइंड आउट कर लिया 3A/2 है. सो वैल्यूज पुट कर दो. सो दिस विल बी 3A/2 माइनस A, this will be 3A/2 minus A, this will be 3A/2 minus A, right. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो 3A/2, इसको सॉल्व करोगे 3A/2 माइनस A इज A/2. इसी तरीके से यहां से भी A/2 आ जाएगा और यहां से भी A/2 हो जाएगा. गॉट इट? अब देखो बच्चे, इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो 3 इंटू this 3A/2 is basically 3 into A/2. So A/2 into A/2 into A/2 into A/2. Now form the pair. So this is the first pair, this is the second pair. 3 का कोई पेयर नहीं, इसलिए वो रूट के अंदर रहेगा. सो रूट 3. यहां से एक A/2 को बाहर कर लो और इधर से एक A/2 को बाहर कर लो. जब आप सॉल्व करोगे सो 3, 2 into 2 is 4 and A into A is A square. So this is the formula to find the area of any equilateral triangle if the measurement of side is given. So what is the formula? Root 3/4 side is square, right. So area of equilateral triangle is equal to root 3/4. A is side, so basically side is square, right everyone. तो आपको ये formula याद करना है. Understood? So hopefully this is clear to everyone. How to derive the formula of equilateral triangle to find the area if the measurement of side is given, right. अब इसी तरीके से we can derive the formula for isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है? A triangle in which two sides are equal. तो दो साइड इक्वल होगी और एक अनइक्वल साइड होगी, राइट. सो सपोज these two are the equal sides AB and AC. AB and AC are the equal sides. और जो बेस है ना वो अनइक्वल है, जिसका मेजरमेंट B है और इन दोनों साइड का मेजरमेंट A है. तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए आई विल यूज बेसिक फार्मूला. सो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सो जो परपेंडिकुलर है गिवन ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा, राइट. सो AD विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है और ये मीडियन का काम करेगा. इसका मतलब D विल बी द मिड पॉइंट. किस केस में? जब आप इक्वल साइड के केस में बीच में एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, राइट. सो अगर इसका मेजरमेंट B है बेटा, सो ये B/2 हो जाएगा, A भी B/2 हो जाएगा. और लेट अस अज्यूम द मेजरमेंट ऑफ AD इज H, दैट इज एल्टीट्यूड फॉर द करेस्पॉन्डिंग बेस BC. एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस और एल्टीट्यूड का पेयर हमें पता होना चाहिए. बेस इज ऑलरेडी गिवन. एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB. सो इन ट्रायंगल ADB
अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे सो वी कैन राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का मेजरमेंट कितना ए स्क्वायर, व्हाट इज ए डी एच, सो एच स्क्वायर, और बी डी कितना है बी बाई टू, सो बी बाई टू स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ना, इसका स्क्वायर करोगे सो बी स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर, इसको इधर शिफ्ट कर लो। राइट अब इसका एलसीएम 4, सो विल गेट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, सो एच क्या हो जाएगा यहां से स्क्वायर रूट, हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि एच साइड है, साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जो न्यूमरेटर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट से उसको कैंसिल कर देते, बट 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इस 4 का स्क्वायर रूट 2 ये बाहर आ जाएगा, बाकी ये चीज अंदर रहेगा। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर दोगे। ए क्या है इक्वल साइड और बी क्या है अनइक्वल साइड, ये चीज याद रखना होना चाहिए। अब एरिया आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस इज बी और एल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाफ इंटू हाफ इज 1/4 और इससे ये हो जाएगा b इंटू 1 इज b, सो b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चीज ख्याल रखना, ए क्या है इक्वल साइड्स, मेजरमेंट ऑफ इक्वल साइड्स ए है, और अनइक्वल साइड जिसको हम बोलेंगे बेस वो बी है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ए क्या है इक्वल साइड्स का मेजरमेंट और बी क्या है अनइक्वल साइड का। तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट, दोनों फार्मूला। सो होपफुली दिस इज क्लियर। एल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एरिया क्या हो जाएगा b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स एल्टीट्यूड से बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट इसका आंसर दो। The sides of triangle are in ratio 12:17:25 and its perimeter is 540. Find the area. आपके पास पेरीमीटर गिवन है, एग्जैक्ट साइड नहीं गिवन, उनका रेशियो गिवन है। सो रेशियो और पेरीमीटर को यूज करके आप साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे बच्चे, सो लेट साइड्स बी 12x 17x एंड 25x, ये साइड्स हो जाएगा, और इनका पेरीमीटर आपके पास गिवन है 540। So we know that sum of sides is equal to perimeter. So 12x plus 17x इन सबको ऐड करोगे सो ये 29 25 54, सो 54x is 540, so x is 540 upon 54, so x is 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो साइड्स क्या हो जाएगी बेटा 12 into 10 that is 120 and 17 into 10 that is 170 and 25 into 10 is 250. Got it? So area, let's say this is A, इसको A assume कर लेते हैं, इसको B assume कर लेते हैं, इसको C assume कर लेते हैं, राइट। और सेमी पेरीमीटर कितना होगा, ये पेरीमीटर गिवन इसका हाफ कर लो, सो 270 विल बी सेमी पेरीमीटर। ओके, फार्मूला यूज कर लो। सो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिंपली वी यूज दिस फॉर्मूला,
पुट द वैल्यूज, s की वैल्यू कितनी है 270, बेटा 270 माइनस a, सो 270 माइनस 120 150 आ जाएगा, 270 माइनस 170, सो ये 100 आ जाएगा, 270 माइनस 250 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? देखो इसको आप लिख सकते हो बेटा 90 इंटू 3 या 9 इंटू 30, इस 270 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 30 ना। 150 को यू कैन राइट 5 इंटू 30, 100 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, और इस 20 को 20 रहने देते हैं। ठीक, अब इस 5 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, और सारी चीजें परफेक्ट स्क्वायर दिख रही होगी आपको। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो 9, ये 30 को एक साथ कर लेते हैं बेटा। 5 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे 100, ऑलरेडी 100 है, तो पहले इस 100 को और मल्टीप्लाई करने पे 100, तो इसका पेयर, और 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। सो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, यहां से एक 30 बाहर आ जाएगा और यहां से एक 100 बाहर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो 90 इंटू 100 सो हो जाएगा 9000, एंड यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो सेंटीमीटर में गिवन, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपके पास रेशियो गिवन है साइड्स का, पेरीमीटर गिवन है, तो पहले आप साइड्स फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद एरिया इजिली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, राइट। इसमें कोई डाउट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना तो बेटा आपके पास साइड गिवन है, ना रेशियो गिवन है, ना पेरीमीटर गिवन है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर को अगर मैं एस बोलूं एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मींस पेरीमीटर और हर साइड का डिफरेंस गिवन है। तो अगर साइड्स आपके पास ए बी सी है, सो एस माइनस ए गिवन है, एस माइनस बी गिवन है, एस माइनस सी। हीरोन्स फार्मूले में क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मिसिंग क्या है, एस गिवन मिसिंग है, तो एस की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी ए बी सी, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए बी सी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेमी पेरीमीटर से डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो बिगर वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, और हमेशा जो सेमी पेरीमीटर होता है हर साइड से ग्रेटर होगा। गॉट इट? सो आपके पास गिवन है एस माइनस ए विच इज 8, एस माइनस बी विच इज 7, एस माइनस सी दैट इज 5, और एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है एरिया। प्रॉब्लम क्या है, एस नहीं है और सारी चीजें आपके पास गिवन है, एस माइनस ए गिवन है, एस माइनस बी गिवन, एस माइनस सी गिवन है। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब कभी भी बेटा आपके पास साइड और पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है ना, इसको यूज करके अगर आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप इन तीनों को ऐड कर लो। तो सिंपली ऐड दीज 3 इक्वेशंस। तो अगर आप ऐड करोगे सो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड, सो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, प्लस साइन क्यों, क्योंकि ऐड कर रहा हूं। यहां पे 8 प्लस 7 प्लस 5, बेटा एस 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 3 टाइम्स ऐड करोगे सो 3 टाइम्स ऑफ एस, माइनस कॉमन आउट कर लोगे सो विल गेट a प्लस बी प्लस सी, एंड दैट इज 8 प्लस 7 15 प्लस 5 इज 20. So is there any relation between a b c and s? So what is a plus b plus c? Perimeter. So semi perimeter के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है so a plus b plus c is twice of semi perimeter. ये फार्मूला था ना, a plus b plus c by 2. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे सो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ। इसको आप वैसे भी समझ सकते थे,
ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होगा, तो उसका अगर आप ट्वाइस कर दोगे सेमी पेरीमीटर का, देन यू विल गेट द पेरीमीटर. सो इसको आप रिप्लेस कर लो ट्वाइस ऑफ एस से, सो यू विल गेट 3s माइनस ट्वाइस ऑफ s इज 20. तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, सॉरी 20. गॉट इट. सो सेमी पेरीमीटर इज 20. ओके, अब इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. तो कभी भी अगर आपके पास यहां से आप एक कंक्लूजन ए भी निकाल सकते हो. 3 साइड्स का डिफरेंस अगर सेमी पेरीमीटर के से गिवन है, तो अगर आप तीनों का सम फाइंड आउट कर लोगे तो डायरेक्टली आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा. सो एरिया क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस 20, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 8, एस माइनस बी इज 7 और एस माइनस सी इज 5, राइट. 20 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 100, इस 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 देन 7. बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर रूट 10, 4 का 2 और 14 स्क्वायर रूट के अंदर. जब आप सॉल्व करोगे सो 20 रूट 14 आ जाएगा. ठीक है, 20 रूट 14 यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो होपफुली ये चीज क्लियर होगी, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द डिफरेंस ऑफ साइड्स एंड द पेरीमीटर इज गिवन, राइट. इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी का, ऑल क्लियर, ग्रेट. अब इसको सॉल्व करते हैं. आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क एंड वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. आपने देखा होगा बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन मेंशन होता है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6 फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर. तो आपको बताना है जो एक एरिया पेंटेड है, जो ये रीजन पेंटेड है, उसका एरिया क्या होगा. मीन्स बेसिकली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्राइंगल जिसकी साइड्स आपके पास गिवन है, सो यू कैन इजिली डू दिस. सो लेट्स से दिस इज ए, this is B and this is C. Heron's formula. So A is 15, B is 11, C is 6. So area painted in color is equal to area of this triangle. So हमें इस triangle का area find out करना है. Semi perimeter A plus B plus C by 2. So that is 15 plus 11 plus 6 by 2. जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 21 प्लस 11 32, ये आ गया 16. सेमी पेरीमीटर 16 है, साइड्स आपके पास गिवन है 15, 11, 6. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 15 इज 1, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 6 इज 10. ठीक है बेटा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का कोई मतलब नहीं ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम आती. ये 5 इस 2 को आप 5 इंटू 2 में लिख लो, एक पेयर हो गया. 16 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, सो 16 का स्क्वायर रूट 4, इस पेयर से एक नंबर को बाहर कर लो, 2 अंदर रहेगा. सो 4 5 जो 20. सो द फाइनल आंसर इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ वॉल विच इज पेंटेड फॉर दिस मैसेज, राइट. सो द फाइनल आंसर इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. ओके गाइज, कोई डाउट इसमें किसी का, एनी कंफ्यूजन? Great. So guys, that's all from my side. In the next class, that will be the lecture 2 of Heron's formula. In that class, we'll see how to find the area of quadrilateral by using Heron's formula, and especially we'll solve 2 types of question: how to find the area of isosceles trapezium and scalene trapezium by using Heron's formula. What is the formula to find the area of trapezium? Half sum of parallel side
इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। लेकिन अगर हमारे पास ट्रिपीजियम की 4 साइड का मेजरमेंट गिवन है, देन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रिपीजियम। सो वी विल कवर this topic in the next class and we'll do that type of questions by using Heron's formula, right? And if you want to know how to prove Heron's formula, then the link is given in the description, right? Press on the link and yes, enjoy the session. That's all from my side, guys. Stay tuned for the next class. If you are new on the platform, then please subscribe it, like the session, share it so that others can also get the benefit from this session. Bye guys, take care.